In the name of Allah, the most merciful and beneficent. My dear viewers, Assalamu alaikum, especially the students of class metric. I'm here with your unit number 9, and there's a poem that is Equipment. Equipment, composed by Edgar Guest. I've tried to cover everything in this, like paraphrasing theme of the poem, what is imagery used by the poet here in the poem, and then its exercise questions and its grammar section as well. I hope it is useful for you and you will take advantage of this video in the preparation of your upcoming examination. Now, I hope first of all you will like this video, you will press like button, you will share it among your class fellows, your friends, you will subscribe it if you have not subscribed it before. I'll be grateful to you. Coming to the poem that is Equipment, composed by Edgar Guest. Your stanza number 1 is, figure it out for yourself, my lad. You have all that the greatest of men have had. 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes, and a brain to use if you would be wise. With this equipment they all began. So start for the top and say, I can. First of all, paraphrasing of the poem. Figure it out. Figure out means to solve, to discover the cause. So the poet inspires the reader here to figure it out, to discover it for yourself. It is your duty to search, to discover, to find out, my lad, my boy, my young boy. So he addresses the young people, the youth of the nation, the youth of the world, who are quite energetic and they are blessed with physical powers, they are blessed with mental capabilities as well. These youth have physical and spiritual and mental powers with them. It is up to them. So it is upon them to discover, to find out their hidden talents. You have all that the greatest of men have had. Now he says that you are not less than the great people of the world. Those who have made their name in the history because of their great achievements, because of their great works. He says, the poet says that you have all the qualities of the great men in you. You are not less than in your capabilities and talents, less than the great people of the world. You have all the same what the great people have had in them. Like 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes. He says that you have all the physical equipment with you. You have all the physical strength with you. You have to work. Definitely, your arms help you do your work. Your hands help you accomplishing some task. You have legs to move on in life. You have eyes to foresee the situation. You have eyes to see what you have to do. You should have a broad vision and a brain to use if you would be wise. And Allah has given you a brain. Brain is the part of human body. But here brain means wisdom. Allah has given you the wisdom. You have to use your brain, you have to use your wisdom in order to move carefully in life. With this equipment they all began. He says that
He here refers to the great men of the world. He says that they had the same equipment. All the great people in the history of the world, they had the same equipment. They used to have 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes, and they had a brain to use what to do in life, how to achieve their aims in life. And you have the same with you. With this equipment, they all began. So start for the top and say, I can. He says that you should take an initiative. You should take the first step in your life. You know, the journey of 1,000 miles begin with but a one single step. He says that you should have a courage to take that first step in your life. Only then you can reach at the top. He says that start for the top. You should take an initiative, take a beginning, and try to reach the top. But you should say, these words must be on your lips, that is, I can. You should not be disheartened. अब यहाँ पे पोएट ये कहता है, दिस इज आई एम डूइंग इट इन उर्दू एज वेल फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स. पोएट ये कहता है कि आप माई लैड, मेरे नौजवान बच्चे, मेरे नौजवान लड़के, तुम खुद तलाश करो. फिगर इट आउट, खुद डिस्कवर करो, खुद तलाश करो कि तमाम जो दुनिया में अजीम इंसान गुजर चुके हैं, उनके अंदर जो खसूसियात थी वो तुम्हारे अंदर भी मौजूद हैं. उनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी. उनके भी 2 बाजू थे, 2 हाथ थे, 2 टांगें थीं, 2 आंखें थीं, एंड अ ब्रेन, और उनके पास दिमाग था. उनके पास सोचने की सलाहियत मौजूद थी. उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया. उन्होंने सोचा, अक्लमंदी से सोचा, और उनके पास यही हथियार थे, यही आर्म्स थे, उनके यही बाजू, हाथ थे, टांगे थी, आंखें थी. ये उनके हथियार थे. इन्हीं हथियारों से, इन्हीं औजारों से उन्होंने अपना काम शुरू किया. आप भी ऊंचाई की तरफ कदम बढ़ाएं और आपकी जुबान पर ये अल्फाज होने चाहिए, आई कैन, मैं कर सकता हूं. Here there is a lesson for you. यहाँ पे एक सबक भी है कि nothing is impossible in this world. Nothing. It may be difficult but it may not be impossible. कोई चीज़ भी नामुमकिन, मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं होती. इसलिए आपकी ज़ुबान पे ये अल्फाज होने चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, I can. अब बेटा आपने इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है? यू शुड डिस्कवर योर ओन पोटेंशियलिटीज. आपको अपनी अंदरूनी सलाहियतों को खुद दरियाफ्त करना है, माई बॉय, एंड आइडेंटिफाई योर हिडन टैलेंट्स. और आपकी जो छुपी हुई जो आपके टैलेंट्स हैं, आपके जो आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, उनको उनकी शनाख्त आपने खुद करनी है. यू हैव बीन ब्लेस्ड विद ऑल द क्वालिटीज दैट ऑल द ग्रेटेस्ट मैन इन द हिस्ट्री हैड. आपके अंदर वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो कि तारीख में जितने भी अजीम लोग गुजर चुके हैं उनके अंदर मौजूद थी. यू हैव सेम फिजिकल स्ट्रेंथ. आपके अंदर भी, आपके पास भी वही जिस्मानी ताकत मौजूद है. विद 2 आर्म्स, जैसा कि 2 बाजू हैं आपके, 2 हैंड्स, आपके 2 हाथ हैं, 2 लेग्स, 2 टांगे हैं, 2 आईज, आपकी 2 आंखें हैं, एंड द सेम इंटेलिजेंस, और वही जहानत आपके पास भी है. ऑल द ग्रेटेस्ट मैन अचीव्ड देयर ऑब्जेक्टिव्स विद द सेम क्वालिटीज एंड टैलेंट्स. तमाम जो दुनिया में अजीम लोग गुजर चुके हैं, उन्होंने अपने मकासद इन्हीं खसूसियात के साथ और इन्हीं सलाहियतों के साथ हासिल किए. Therefore, take an initiative in order to reach at the top. आप सिर्फ वो पहला कदम उठाएं. इनिशिएटिव, जस्ट टेक अ स्टार्ट. आप सिर्फ वो स्टार्ट लें in order to reach at the top, ताकि आप टॉप पे पहुंच जाएं. You should have will power to say you can do. आपके अंदर सिर्फ एक विल पावर होनी चाहिए. आपके अंदर सिर्फ एक
कुव्वते इरादी होनी चाहिए। आप अपनी कुव्वते इरादी से तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और आप ये कहें कि आप कोई काम भी है, आपकी ज़ुबान पे ये अल्फाज होने चाहिए कि आप कर सकते हैं। I hope this stanza is clear to you. This is a very inspiring stanza. बहुत रीडर्स को इंस्पायर कर रहा है कि जो अजीम लोग दुनिया में, जिनकी कहानियाँ आप सुनते हैं, जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किए, बहुत अजीम उन्होंने अपने मकासद को हासिल किया, तारीख़ में उनका नाम बना, तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी। यही फिज़िकल इक्विपमेंट्स थे, हाथ थे, पाँव थे, टांगें थीं, आंखें थीं, इन्हीं फिज़िकल इक्विपमेंट्स थे। उनके पास ब्रेन था जिससे वो सोच के वो आगे बढ़े। उन्होंने सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप लिया, और उन्होंने उनके ज़ुबान पे था कि हम कर सकते हैं। So the poet wants to inspire us or to motivate us to just take the first step in life. Coming to stanza number 2, he says that, look them over, the wise and great. They take their food from a common plate, and similar knives and forks they use. With similar laces they tie their shoes. The world considers them brave and smart, but you have all they had when they made their start. Now he says that, look them over, the wise and great. He says that आप उन लोगों को देखें. Those people were wise. Those people were great. अब यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात आ रही है कि वो लोग अक्लमंद लोग थे. They had nothing extraordinary with them because they take their food from a common plate. जिस प्लेट में आप खाना खाते हैं उसी प्लेट में वो भी खाना खाते थे. उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की प्लेट्स नहीं थी खाना खाने के लिए कि तब हम कह सकें कि वो बहुत अजीम लोग थे. No, they used to eat from a common plate. And similar knives and forks they use. You use the same equipments to eat with. आप उन्हीं इक्विपमेंट से जिनसे आप खाते हैं, चम्मच से और जिन छुरियों और चमचों का इस्तेमाल आप करते हैं वो भी वही करते थे. With similar laces they tie their shoes. Tying shoes with the similar laces. To tie their shoes to get ready for some work. So he says that they had similar laces in their shoes to tie them. The world considers them brave and smart. वो कहते हैं कि जब उनके पास सब कुछ कॉमन था, जब उनके पास यही कॉमन प्लेट्स थी, कॉमन चमचे थी, छुरियां थी, और वो उसी तरह आम लोगों की तरह बैठ के खाया करते थे, उनकी यही खुराक थी, तो फिर दुनिया उनको क्यों बहुत बहादुर और बहुत स्मार्ट समझती है. But you have all they had when they made their start. The thing is that you people have the same equipments. You people have the same wisdom. The thing is just take your start. उन लोगों ने इन्हीं चीज़ों से, इन आम चीज़ों से ही स्टार्ट लिया था. And the world considers them brave and smart. और दुनिया उनको बहुत अजीम समझती है. उनके पास तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं थीं, यही थीं जो हमारे पास हैं. लेकिन अपनी विजडम से उन्होंने अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाया, उन्होंने अपनी सलाहियतों को पहचाना, अपने हिडन टैलेंट्स को डिस्कवर किया, और फिर वो आगे बढ़ते चले गए. एंड पैराफ्रेज ऑफ दिस पोएम इज दिस स्टैंजा. You should examine and observe the lives of wise and great men, that they had nothing extraordinary with them but led a common life. कि आप उन अजीम लोग जो थे उनकी ज़िंदगियों का मुशाहिदा करें, उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें, बगौर मुताला करें. दैट दे हैड नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. उनके पास कोई गैर मामूली किस्म की चीज़ें नहीं थी, बट लेड अ कॉमन लाइफ. उन्होंने बहुत एक आम इंसानों वाली ज़िंदगी गुजारी. दे वर जस्ट लाइक यू, ईटिंग कॉमन फूड इन अ कॉमन प्लेट. वो आप लोगों की तरह ही थे, आम खाना खाते थे, आम प्लेट में खाते थे. दे यूज्ड सिमिलर नाइव्स एंड फोक्स टू ईट एज यू डू.
वो यही छुरियां चमचे जो है वो उनका इस्तेमाल करते थे जो जिनका इस्तेमाल आप करते हैं जब आप खाना खाते हैं. दे टाइड देयर शूज विथ सिमिलर लेसेस. वो इन्हीं लेसेस से अपने जूते बांधते थे. Although they led a common life but achieved great fame and name in history. अगरचे उन्होंने आम जिंदगी गुजारी लेकिन तारीख में उन्होंने बहुत नाम और उन्होंने बहुत शोहरत कमाई, बहुत शोहरत हासिल की, बहुत नाम हासिल किया. एंड यू हैव ऑल विद यू. और आपके पास भी वही सब है व्हाट दे हैड जो उनके पास था व्हेन दे टुक देयर स्टार्ट, जब उन्होंने शुरुआत की थी. So, another motivating stanza here for the readers that you should just take your start with willpower. उनके पास will power थी, कुव्वते इरादी थी, उनके अंदर कुव्वते इरादी पाई जाती थी. They were determined to do something. उनके अंदर determination था, कुव्वते इरादी थी, determination था. वो एक चीज़ का तहिया कर लेते थे और फिर उसको हासिल करके छोड़ते थे. इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थीं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औजार थे उनके पास जिनसे उन्होंने बड़ा नाम कमाया, जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया. सो दिस इज अ वेरी मोटिवेटिंग स्टैंजा. कमिंग टू स्टैंजा नंबर 3. You can triumph and come to skill. You can be great if only you will. You are well equipped for what fight you choose. You have legs and arms and a brain to use. And the man who has risen great deeds to do began his life with no more than you. Now, in this stanza, we are told that you can triumph. Now see, there is a positivity, tone of positivity, optimistic tone in this stanza. Triumph, the very word triumph shows us that there is an optimistic note. There is an optimistic tone in the stanza. You can triumph, you can win, you can achieve victory and come to skill. You can be great if only you will. You have all the skills in you. Only the thing is that you have to recognize them, identify them, discover them. आपके अंदर भी वो तमाम स्किल्स मौजूद हैं, सिर्फ आपने उनको आइडेंटिफाई करना है. यू कैन बी ग्रेट. नाउ सी, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बी ग्रेट इफ ओनली यू विल. नाउ इट मीन्स दैट इफ यू विल टू डू समथिंग, अगर आपके अंदर विल है करने के लिए, काम करने के लिए अगर विल पाई जाती है तो फिर आप बहुत अजीम इंसान आप भी बन सकते हैं. यू कैन बी ग्रेट इफ ओनली यू विल, यू विश, you yourself will to do something. You are well equipped for what fight you choose. तो आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं. You are well equipped with all the equipments. आपके अंदर वो तमाम आपके पास वो तमाम equipments मौजूद हैं. You are quite ready for what fight you choose, for what aim you are going to pursue. You have legs and arms and a brain to use. He says that you have all those things which the great men had with them, that is legs, arms and brain. And the man who has risen great deeds to do. He says that you have the examples of all the great people in the world who have done great actions. They began his life with no more than you. He says that the thing is that they had just started their life with the same things as you have. There was nothing more with them. उनके पास इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था जो आपके पास है. So, the paraphrasing of the stanza is, you should be confident and trust in your abilities. आप कॉन्फिडेंट, सिर्फ आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए.
आपके पास एतमाद होना चाहिए. ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज. अपनी काबिलियत पे यकीन रखें. that you can achieve victory and have ability to use your knowledge effectively. कि आपके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं और आप अपने नॉलेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें. पुरस्सर अंदाज में अपने इल्म का इस्तेमाल करें. You can make your way through life and achieve because you are well equipped for the struggle to achieve it. आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और हासिल कर सकते हैं क्योंकि आप इस जिंदगी की तगोदो के लिए, इसकी स्ट्रगल के लिए आप बेहतरीन तरीके से तैयार हैं, वेल इक्विप्ड हैं, आपके पास तमाम औजार मौजूद हैं. यू हैव ऑल योर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. आपके अंदर तमाम जिस्मानी और रूहानी मजबूती आपके अंदर पाई जाती है. बिकॉज यू हैव आर्म्स, लेग्स एंड ब्रेन एज टूल्स टू हेल्प यू. आपके पास टूल्स हैं, आपके पास औजार हैं जो आपकी मदद करेंगे. यू हैव एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट मैन इन हिस्ट्री. आपके पास तारीख में अजीम लोगों की मिसालें हैं. हु हैव रिजन टू द हाइट्स, जो कि बहुत ऊंचाई तक पहुंचे विद देयर ग्रेट डीड्स, अपने अजीम अमाल के जरिए. that they have begun their lives with the same abilities, कि उन्होंने भी इन्हीं सलाहियतों के साथ अपना काम शुरू किया, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की. and strength as you have, और यही ताकत उनके अंदर थी, जिस्मानी ताकत थी जो कि आपके पास है. and the first line tells us, it motivates us, it inspires us that you can triumph. आप भी जीत सकते हैं. So there is nothing lacking in our personalities, there is nothing lacking in our physical strength, in our mental capabilities. हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है. Only just we have to realize, we have to identify, we have to discover our hidden talents and go on in life with them. Coming to the fourth stanza, you are the handicap you must face. You are the one who must choose your place. You must say where you want to go, how much you will study the truth to know. God has equipped you for life, but He lets you decide what you want to be. Now say, you are the handicap you must face. If you feel that you are disabled to do something, अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप इस काबिल नहीं हैं, यू फील योर डिसेबिलिटी, आप कहते हैं जी आप इस काबिल नहीं हैं कि आप ये काम कर सकें, देन ही सेज दैट इट इज ऑफ योर ओन क्रिएशन. यू हैव क्रिएटेड दिस फियर इन यू. इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर ये खौफ पाला हुआ है कि आप इस काबिल नहीं हैं. यू आर द हैंडीकैप यू मस्ट फेस. और जो इसके रास्ते में जो आप हर्डल्स फेस कर रहे हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं. बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दिस फियर इन यू. यू आर द वन हु मस्ट चूज योर प्लेस. ही सेज दैट नो वन विल डिसाइड एनीथिंग फॉर यू. It all depends on you. It is you who have to choose your ambition. It is you who have to choose your aim in life. You must say where you want to go. You must know. And then you express the things. Where do you want to go? आप ही जानते हैं आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं. Nobody knows it better than you. आपसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कोई नहीं जानता कि आपके क्या मकासद हैं. हाउ मच यू विल स्टडी द ट्रूथ टू नो, एंड हाउ मच स्टडी इज रिक्वायर्ड टू नो द ट्रूथ. बिकॉज गॉड हैज़ इक्विप्ड यू फॉर लाइफ, बट ही लेट्स यू डिसाइड वट यू वॉन्ट टू बी. कि अल्लाह ने तो आपको पैदा कर दिया. अल्लाह हैज़ गिवन यू अ लाइफ विद ऑल दीज इक्विपमेंट्स, with all these weapons. अल्लाह ने आपको पैदा किया तो ये सारी इक्विपमेंट्स भी आपको दी साथ में. आपके बाजू हैं, आपके हाथ हैं, आपकी आंखें हैं, आपका दिमाग है, आपके पाँव हैं जो आपको आगे ले जाते हैं. अल्लाह ने ये सारी इक्विपमेंट्स दे के आपको दुनिया में भेजा. बट ही लेट्स यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी.
और फिर आप पे छोड़ दिया कि आप फैसला करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। उसने तो आपको तैयार करके भेज दिया, सारे इक्विपमेंट्स आपको दे दी, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, ही लेट इट बी डिसाइडेड बाय यू। And paraphrasing is, if there is any handicap in you, it must be your own making. अगर कोई हैंडीकैप आपके अंदर है तो वो आपका अपना पैदा करता है, एंड योर ओन बेसलेस फियर्स। ये सब आपके बेबुनियाद खौफ हैं, आपके बेबुनियाद आपका डर है। अदरवाइज एवरीवन इज बॉर्न विद स्किल्स एंड टैलेंट्स, वरना तो सब लोग ही महारतों के साथ पैदा किए गए, सलाहियतों के साथ पैदा किए गए, एंड इट इज़ ओनली यू हु हैव टू मेक योर डेस्टिनी। और ये सिर्फ आप हैं जिन्होंने अपनी मंजिल की शनाख्त करनी है, अपना मुकद्दर खुद बनाना है। यू मस्ट डिसाइड वेयर यू वॉन्ट टू गो। आपने फैसला करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, एज इट डिपेंड्स ऑन योर एम्बिशन, क्योंकि ये आपके मकासद पर डिपेंड करता है। God has created man with all the abilities. अल्लाह ने तो इंसान को तमाम सलाहियतों के साथ पैदा कर दिया, and he has equipped him fully for the race of life. और ज़िंदगी की इस दौड़ के लिए अल्लाह ने उसको मुकम्मल तौर पर equip भी कर दिया, उसको औजार भी दे दिए साथ में, with all these physical and moral equipment. और वो औजार क्या है, हमारा अपना जिस्मानी और हमारी जो मॉरल इक्विपमेंट्स हैं, वो विल पावर है। हमारी मॉरल इक्विपमेंट क्या है, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर। ही हैज़ सेंट यू इन दिस वर्ल्ड टू डिसाइड। उसने आपको इस दुनिया में भेज दिया कि आप फैसला करें व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं इन लाइफ। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। Now coming to the last stanza, courage must come from the soul within. The man must furnish the will to win. So figure it out for yourself, my lad. You were born with all that the great have had. With your equipment they all began. Get hold of yourself and say, I can. Now say, courage must come from the soul within. The important thing is that you must be courageous enough. आपके अंदर हौसला होना चाहिए। The man must furnish the will to win. इंसान के अंदर विल पावर होनी चाहिए जीतने के लिए, कुव्वते इरादी होनी चाहिए। So figure it out. दोबारा वो इस चीज़ पे, he presses this point again, वो इस चीज़ पे जोर दे रहा है पोएट। Figure it out, इसको डिस्कवर कीजिए, इसकी शनाख्त कीजिए for yourself, आप खुद। My lad, my young boy, you were born with all that the great have had. आप उन तमाम सलाहियतों के साथ पैदा हुए जो अजीम लोगों के अंदर पाई जाती थीं। With your equipment they all began. आप वाली जो इक्विपमेंट्स आपके पास हैं, इन्हीं इक्विपमेंट से तो उन सब अजीम लोगों ने अपना काम शुरू किया था। गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ एंड से आई कैन। अब जस्ट इट इज़ जस्ट गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। गेट कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, गेट कंट्रोल ऑफ ऑल दीज पावर्स, मॉरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल स्ट्रेंथ। जस्ट गेट होल्ड ऑफ दैम। इन तमाम इक्विपमेंट्स पे काबू पा लें, एंड से और कहें, आई कैन, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। नाउ पैराफ्रेजिंग इज, इफ वन हैज़ विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, अगर इंसान के अंदर कुव्वत इरादी और वो बाहिम्मत हो, बाहौसला हो, ही बिकम्स करेजियस, वो उसके अंदर करेज, हौसला पैदा होता है, एंड बोल्ड टू मूव अहेड, और वो बहादुर बन जाता है आगे बढ़ने के लिए। मैन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, इंसान के अंदर मजबूत कुव्वत इरादी होनी चाहिए, बिकॉज विद विल पावर ओनली ही कैन ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ लाइफ, क्योंकि कुव्वत इरादी ही की वजह से वो ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात पर काबू पा सकता है। देयरफॉर यू शुड डिस्कवर इट योरसेल्फ माय बॉय, मेरे नौजवान लड़के, तुम इसको खुद दरियाफ्त करो, that you have been born with all the physical and spiritual powers,
कि तुम तमाम जिस्मानी और रूहानी ताकतों के साथ पैदा हुए एंड द इक्विपमेंट और तमाम औजार तुम्हारे पास हैं दैट ग्रेट मैन हैड, जो कि अजीम इंसानों के पास थे. विद द सेम इक्विपमेंट द ग्रेट मैन स्टार्टेड देयर स्ट्रगल. इन्हीं औजारों के साथ उन अजीम इंसानों ने अपनी कोशिश शुरू की. यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई योर एबिलिटीज़. आपको सिर्फ अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियतों को पहचानने की ज़रूरत है. एंड जस्ट से, और सिर्फ ये कहें आई कैन, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ. इट इज़ विद विल पावर एंड डिटर्मिनेशन. ये आपकी कुव्वत इरादी है, आपका हौसला है दैट वन कैन अचीव ग्रेटनेस इन लाइफ, कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अजमत हासिल कर सकते हैं, बहुत आला मुकाम हासिल कर सकते हैं सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से और अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएम इज क्लियर टू यू. Paraphrasing is given here for the students so that they don't have any difficulty to attempt this question in the paper when they are required to do paraphrasing of any of the stanzas. Now coming to the questions of the poem, what is the rhyme scheme of the poem? The rhyme scheme of the poem is AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, and then AA and CC, because see, in the last 4 stanzas, lad, had, as it is given in the first stanza, began and can. Now, your question number 2 is, what is the theme of the poem Equipment? Once you have done paraphrasing and I have explained the things in detail, you must know the theme. You can write it on your own. आप खुद से भी theme लिख सकते हैं कि this poem is all about self-confidence. This poem is all about determination and willpower. It gives us a positive and universal message that we can also become great like great men in the world. ये पोएम हमें एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज और बहुत यूनिवर्सल मैसेज हमें देती है कि हम भी दुनिया में के अजीम लोगों की तरह अजीम बन सकते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ ऑल आवर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स. अपनी तमाम तर सलाहियतों और काबिलियतों का इस्तेमाल करके. Everyone in the world is born with physical and mental qualities. दुनिया में हर कोई जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों के साथ पैदा हुआ. And it depends on him how he identifies them. ये उस पे इन्हिसार करता है, अब ये उस पे मुनसर है कि वो कैसे उनको पहचानता है and make the best use of his talents, और अपने टैलेंट्स का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकता है. If there is any handicap in us, अगर हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, it must be our own making. ये सिर्फ हमारी अपनी तख्लीक करदा है. And our own baseless fears. ये डिसेबिलिटी नहीं है, ये हमारे बेबुनियाद खौफ हैं, हमारा बेबुनियाद डर है. Otherwise everyone is born with skills and talents. वरना हर कोई बंदा महारतों के साथ पैदा किया. अल्लाह ने हर एक को सलाहियतें दी. एंड इट इज़ ओनली वी हु हैव टू मेक अवर हु हैव टू मेक अवर डेस्टिनी. हमने अपनी मंजिल का फैसला करना है. हमने अपनी मंजिल को पहचानना है और उसकी तरफ बढ़ना है. वी मस्ट डिसाइड वेयर वी वॉन्ट टू गो. हमें फैसला करना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं. एंड इट डिपेंड्स ऑन अवर एम्बिशन. और ये हमारे हसूल मकसद पे है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है. गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन विद ऑल द एबिलिटीज़. अल्लाह ने तमाम सलाहियतों के साथ इंसान को पैदा किया. एंड ही हैज़ इक्विप्ड हिम फुली फॉर द रेस ऑफ लाइफ. और ज़िंदगी की दौड़ के लिए उसको मुकम्मल तौर पे तैयार कर दिया. विद ऑल द फिज़िकल एंड मॉरल इक्विपमेंट. ही हैज़ सेंट अस इन दिस वर्ल्ड टू डिसाइड व्हाट वी वांट टू बी इन लाइफ. अल्लाह ने फिर हमें दुनिया में भेज दिया ये फ़ैसला करने के लिए कि हम क्या बनना चाहते हैं. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. क्योंकि अल्लाह तो उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. द वंस हु टेक बोल्ड स्टेप्स इन लाइफ. वो लोग जो ज़िंदगी में बहादुरी के कदम उठाते हैं.
Question number 3 is, all human beings are created equal. Explain this statement in the light of the poem Equipment. God has created man with all the abilities, and he has equipped him fully for the race of life with all these physical and moral equipment. He has sent us in this world to decide what we want to be in life. If there is any handicap in us, it must be our own making and our own baseless fears. यानी तमाम लोग जिंदगी में बराबर पैदा किए गए हैं. इन द लाइट ऑफ द पोएम हम देखें तो पोइट हमें यही सबक सिखा रहा है कि जो अजीम लोग जिन्होंने दुनिया में अजीम कारनामे सर अंजाम दिए, उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी. उनके पास भी ये तमाम इक्विपमेंट्स थे जो हमारे पास हैं, क्योंकि अल्लाह ने सबको बराबर पैदा किया. गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन इक्वली विद इक्वल एबिलिटीज़ विद इक्वल टैलेंट्स. तो अगर हमारी ज़िंदगी में कोई हैंडीकैप है, अगर हम कहते हैं कि कोई डिसेबिलिटी है, तो वो हमारी अपनी बनाई हुई है. अदरवाइज एवरीवन इज बॉर्न विद स्किल्स एंड टैलेंट्स. वरना तो सब लोग ही, सबके पास ही कोई ना कोई सलाहियतें हैं. इट इज़ ओनली वी हु हैव टू मेक अवर डेस्टिनी. अपनी सलाहियतों के मुताबिक हमने अपनी मंजिल का तयन करना है. वी मस्ट डिसाइड वेयर वी वांट टू गो एज इट डिपेंड्स ऑन अवर एम्बिशन एंड विल पावर. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. We can make our way through life and achieve greatness because we are well equipped for the struggle to achieve it. You have all the physical and spiritual strength. We have all our physical and spiritual strength with us because we have arms, legs, brain as tools to help us. We have examples of great men in history. तारीख में हमें अजीम लोगों की मिसालें मिलती हैं who have risen to the heights, जिन्होंने ऊंचे मुकाम हासिल किए with their great deeds, अपने अजीम कारनामों से, with the same equipment and same abilities. उनके पास यही equipments थे जो हमारे पास हैं, उनके पास यही सलाहियतें थीं जो कि हमारे पास मौजूद हैं. Now question number 4 is, how do you feel after reading the poem? इस नज़म को पढ़ने के बाद आप क्या फील करते हैं? और डेफिनेटली इट इज़ हाईली मोटिवेटिंग पोएम है. ये तो बहुत ही मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है. वी आर फीलिंग मोटिवेटेड आफ्टर रीडिंग दिस पोएम. इट इज़ रियली एन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पोएम. इट हैज़ गिवन अस होप एंड करेज by saying that we are no less than great men in the history in our physical and mental abilities. ये नज़म हमें उम्मीद देती है, हमें हौसला देती है ये कह के कि हम भी तारीख़ में जो अजीम लोग गुज़रे उनसे कम नहीं हैं अपने जिस्मानी और अपनी ज़हनी काबिलियतों में. वी कैन अचीव ग्रेटनेस एंड वर्क वंडर इन लाइफ. हम भी वो अज़मत हासिल कर सकते हैं, हम भी ज़िंदगी में बेहतरीन कारनामे, हैरान कुन काम कर सकते हैं. इफ़ वी रियलाइज़ अवर पोटेंशियल, अगर हम अपनी सलाहियतों को पहचान लें एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ ऑल आवर एबिलिटीज़, और अपनी तमाम तर काबिलियतों का बेहतरीन इस्तेमाल भी करें. We should not waste our capabilities in useless pursuits. अब आजकल के नौजवानों को, if we see them, they have these gadgets in their hands. They are just wasting time in useless pursuits. ये बेकार कामों में, they are surfing WhatsApp, they are surfing Facebook. They are busy in making TikToks. Now see, their positive abilities, their talents are being diverted into negative talents. They are just wasting, they are not utilizing their abilities and their talents in the positive way. So this is what we are taught in this poem, that we should not waste our capabilities. हमें अपनी सलाहियतों को ज़ाया नहीं करना चाहिए in useless pursuits, बेकार कामों में, but channelize our energies. ये एक लेसन है हमारे लिए कि हम अपनी जितनी भी ताकतें हैं उनको चैनलाइज करें, उनको एक प्रॉपर रास्ता दें, एक प्रॉपर सिमत में उनको रखें और उसकी तरफ बढ़ते जाएं. We can also achieve the heights of success, और हम कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं like other great men in the world, दुनिया के दूसरे अजीम इंसानों की तरह. Question number 5 is, choose the correct option. इसी पोम से रिलेटेड इसके स्टैंजाज में से कुछ आपके लिए MCQs तैयार किए गए हैं. Choose the correct option. The word equipment is used by the poet as
Metaphor. What is metaphor? Metaphor is a direct comparison with the thing. Like the word equipment is used by the poet as metaphor. यहाँ पे equipment को metaphor के तौर पे दिया, इसको इस्तेमाल किया गया, इस्तारा है ये कि equipment क्या है हमारे पास, हमारी जो arms हैं, हमारे जो physical और moral strength का नाम उसने equipment दिया. So it's a metaphor. The poem Equipment by Edgar Guest is in the form of dash from father to son, is the form of advice. It's a clear advice from a father to son. The words forks, shoes, laces are used as imagery. What is imagery? Imagery in the poem are the words which appeal to our five senses. Somewhere it appeals to our sight, somewhere it appeals, there are sounds which could be heard by our ears, it appeals to our sense of hearing, then sense of touch, sense of smell. So these all are imageries. And what is the imagery used in the poem Equipment by Edgar Guest? The words forks, shoes, laces are used as imagery. And what sort of imagery is this? Imagery which appeals to our sight, जो हमारी नज़र को अपील करती है. क्योंकि जब वो कहता है कि उनके पास यही फोक्स और यही नाइफ्स थे, उनके पास यही कॉमन प्लेट्स थी, तो हमारी नज़रों के सामने प्लेट्स आ रही होती हैं, नाइफ्स का इमेज आ रहा है, फोक्स का इमेज आ रहा है, लेसेस, शूज़, हैंड्स, लेग्स, आर्म्स. देखिए ये हमारे सेंस ऑफ साइट को अट्रैक्ट कर रही हैं. सो इमेजरी ऑफ साइट इज यूज्ड हियर. द वर्ड्स फोक्स, शूज़, लेसेस आर यूज्ड एज इमेजरी. Number 4 is the mood of the poem. The equipment is optimistic. Definitely there is optimism. Optimism, hopefulness. There is hope in the poem. And number 5 is what according to the poem equipment is essential for someone to become a great person. कहते हैं कि great person बनने के लिए कौन सी equipment बहुत ज़रूरी है? That is will. आपकी जो कुव्वत इरादी है, courage, आपका हौसला, एंड सेल्फ कंट्रोल. हाउ डू यू टेक होल्ड ऑफ ऑल योर इनर कैपेबिलिटीज, इनर स्ट्रेंथ एंड योर फिजिकल स्ट्रेंथ. आप उन पे कैसे काबू पाते हैं और उनको अपने मुताबिक ढाल के उनको इस्तेमाल करते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द इमेजरी ऑफ द पोम इक्विपमेंट. इक्विपमेंट की इमेजरी क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, द विजुअल इमेजरी इज यूज थ्रू आउट द पोएम. पूरी पोएम में आपको विजुअल इमेजरी मिलेगी. द वर्ड्स आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, आईज, नाइव्स, फोक्स, प्लेट्स, टाई, शूज विद लेसेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल इमेजरी इन द पोएम. पूरी पोएम में आपको जो विजुअल इमेजरी मिलेगी वो यही है, यानी आपकी नजरों ऐसे लगता है आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं. देयर इज क्वेश्चन नंबर 7, connotative and denotative meaning of the following words. Coming to the word equipment, its denotative meaning. What is denotative? Denotative is a literal meaning of something, जिसका लफ्सी मतलब, ये आप याद रखिएगा. डिनोटेटिव इज अ लफ्सी मतलब ऑफ समथिंग. ठीक है, उसका लफ्सी मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ समथिंग. जैसे इक्विपमेंट का क्या मतलब है? इक्विपमेंट इज अ टूल. इक्विपमेंट का मतलब है टूल, एक औजार, जो भी है. जबकि पोम में जो ये यूज किया गया डिनोटेटिव मीनिंग, तो वो टूल है उसका, लेकिन इक्विपमेंट जो है वो एक क्वालिटी है, एक एबिलिटी है. ये जो इक्विपमेंट है ये किसके लिए यूज़ हुआ पोइम के अंदर? आपके हैंड्स के लिए, लेग्स के लिए, आइज़ के लिए, आपकी विल पावर के लिए, आपके जो डिटर्मिनेशन है, मॉरल, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल पावर्स के लिए इक्विपमेंट यूज़ किया गया. सो कोनोटेटिव मीनिंग इज़ अ क्वालिटी और द एबिलिटी, एंड डिनोटेटिव मीनिंग तो वो लिटरल मीनिंग है, वो उसका लफ्सी मतलब है, दैट इज़ अ टूल.
सिमिलरली ब्रेन का जो डिनोटेटिव मीनिंग है, डिनोटेटिव जो लफ्सी मतलब उसका है वो क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी। ब्रेन, हम जैसे ही ब्रेन का नेम आता है हमें समझ आ जाती है कि इट इज़ आवर ब्रेन, ये हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है। लेकिन यहाँ पोएम में कैसे इसको कोनोटेटिव मीनिंग में यूज़ किया गया, विजडम के सेंस में इसको यूज़ किया गया, दैट दोज ग्रेट पीपल हैव यूज्ड देयर विजडम। सिमिलरली कॉमन प्लेट, अगर आप उसका लफ्सी मतलब देखें, डिनोटेटिव देखें तो वन प्लेट है, ठीक है, जिसके अंदर सब खाते हैं, एक प्लेट। जबकि कॉनोटेटिव मीनिंग मीन्स सेम फूड, सेम डिश, सेम फूड। हैंडीकैप क्या है, डिनोटेटिव मीनिंग है फिजिकल डिसेबिलिटी। हैंडीकैप को का लफ्सी मतलब होता है जो जिस्मानी, जो कोई अपाहज होता है। कोनोटेटिव मीनिंग्स क्या है इसके, हर्डल्स और डिफिकल्टीज हैं हैंडीकैप। टॉप का डिनोटेटिव मीनिंग है हाइट, टॉप हम हाइट को कहते हैं। जबकि कोनोटेटिव दैट इज अचीवमेंट, दैट इज योर डेस्टिनी, डेस्टिनी आपकी मंजिल है, दैट इज कॉल्ड द टॉप। I hope this is clear to you. We have to choose the correct preposition. He goes to library every evening. To library. You must walk along the bridge. Along the bridge means you have to walk along the bridge. आप ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रिज को क्रॉस करें, आप ब्रिज के साथ साथ भी जा सकते हैं, ब्रिज के मिडल में भी जाके आप रुक सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट गो और वॉक अलोंग द ब्रिज। वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड टर्न लेफ्ट, आप इस गली में आगे जाएं, वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड देन टर्न लेफ्ट। दैट वमन गोइंग इन टू द सुपर मार्केट इज माई मदर। सना इज टॉकिंग टू महविश। So, another part of this question, part B, choose the correct preposition of time and place. अब time और place के लिहाज से आपने इसको बताना है। Stay away from the dog, it bites. Stay away from. Away from, two prepositions come in a blank. Please get up the stage, the performance is about to start. Please get up the stage. Number 3 is quick, get the balls before it rolls down the hill. Number 4 is what do you like to do on the weekend? Number 5, I haven't seen her since June. यहाँ आपने since का use क्यों किया, क्योंकि June is an exact month which has been mentioned here, that we have not seen her or since June. Number 6, we will next meet in the middle of next month. In the middle of next month. Number 7 is her birthday is on the 6th June. Number 8, he was born at a farm. At a farm. Now, there is another important part of the exercise, and that is prepositional phrases. Prepositional phrase always starts with a preposition. ये याद रखिएगा कि prepositional phrase will start with a preposition and then there will be one more word or more than one words to describe the thing. He will be back in a few days. In, starting with a preposition and a combination of different words which show the time. We will be back in a few days. They drove to Peshawar. Prepositional, it shows the place. They drove to, starting with preposition. Hina is the girl in the red dress. Now see, it starts, this phrase starts with the preposition in, and then in which dress? In red dress. So, in the red dress is a prepositional phrase. Number 4, we have got a new television with a 31-inch screen. With a 30. Now, starting with a preposition with, a 31-inch screen. Number 5, the lion was killed by a hunter. Starting with the preposition by whom? By a hunter. It's a prepositional phrase.
I saw a wonderful painting by Ismail Gulji. By whom? By Ismail Gulji. So it's a prepositional phrase. You will see in a sentence that prepositional phrase always starts with a preposition. ये आप याद रखिएगा कि preposition उसका head word होगा. Now coming to the exercise, your exercise question is, complete the following sentences choosing the appropriate prepositional phrases. Except for Jamil, they all seemed pretty cordial. Except for Jamil के अलावा सब लोग cordially सबने एक दूसरे को greet किया. Number 2, to a great extent, cancer is curable. To a great extent is a prepositional phrase. The train was late. In spite of this, I managed to get to the meeting in time. In spite of it. Apart from the starter, I thought the meal was excellent. Starter के अलावा मैंने सोचा कि खाना excellent था. Apart from the starter. And number 5 is, what is the matter with you? Now starting with the preposition with. ये बात आप याद रखिएगा कि if you are to identify the prepositional phrase in a sentence, अगर आपको पेपर में या कहीं भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि आप prepositional phrase को आइडेंटिफाई करें या उसको अंडरलाइन करें, तो आप ये याद रखिएगा कि आप preposition को सर्च करने की कोशिश करें. ये एक की आपको बता रही हूँ. सेंटेंस के अंदर आप देखें, जैसे नंबर 1 देखिए, वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज. आप देखिए प्रेपोजिशन क्या है? इन व्हाट? इन अ फ्यू डेज. कुछ अल्फाज में आपको प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा और वो आगे उसका डिस्क्रिप्शन होगा. दे ड्रोव टू पेशावर. टू से स्टार्ट हो रहा है और आगे जो इसके साथ रिलेटेड है वो चीज आपने, वो तमाम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं. ठीक है, वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होंगे और आगे जितनी डिस्क्रिप्शन उसकी, इन अ फ्यू डेज, टू पेशावर, इन द रेड ड्रेस, विद अ 31 इंच स्क्रीन, बाय अ हंटर, बाय इस्माइल गुलजी. नाउ सी, these are prepositional phrases and there is no difficulty in it to find out what is a prepositional phrase. I hope it is clear to you. It will be helpful to you in your examination as well and you have understood it quite well. Please press like button and I hope you will like it, share it, subscribe it, and I will be waiting for your kind comments as well. Do comment on my video. Tell me how did you find it, whether it's easy, it's difficult, or what else should I explain from this poem, from this exercise. Whatever you need, you must write it. I'll try to upload it in my next video. I thank you all.